करते हैं तो क्या टैक्स भरते हैं आज? मैंने आपको मेरा फ्लैट दिया और आपने अपना फ्लैट दिया मुझे, तो हम लोग क्या टैक्स भरते हैं आज? नहीं भरते हैं। लेकिन जब जीएसटी आ जाएगा तो ये इवन एक्सचेंज के ऊपर, इवन बार्टर के ऊपर, इवन अगर आपको फ्लैट आप लीजिंग के ऊपर भी देते हो या आपका कोई कॉम्प्लेक्स लीजिंग के ऊपर भी देते हो, उसके ऊपर भी टैक्स आ जाएगा। तो इट इंक्लूड्स सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। थर्ड वाला जो है, अगर आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट, फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट एक कर्नाटक में है, एक आपका प्रोजेक्ट हैदराबाद में है, तो अगर आप यहाँ से कोई गुड्स अगर हैदराबाद भेजते हो एज ए स्टॉक ट्रांसफर, उसके ऊपर भी टैक्स आने वाला है। हेलो एवरीबॉडी, इस तारा अब्बास और आप देख रहे हैं गुहाश। फिलहाल हम हैं ग्रैंड होटल पर, जहां पर चल रही थी जीएसटी के ऊपर सेमिनार। मेरे साथ फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट फॉर क्रेडाई कर्नाटका मोहम्मद रफीउद्दीन साहब हैं। सर, थोड़ा इस सेमिनार के बारे में बताइए सर, हाउ यू फेल्ट? इंडिया के टैक्स लॉज में सबसे बड़ा रिफॉर्म जो कि सब इंतज़ार कर रहे थे, उसका जीएसटी, वो एक रियलिटी होने वाला है 1 जुलाई से। उसके लिए हमारे बिल्डर्स फ्रेटर्निटी को एजुकेट करने के लिए हम एक एक्सपर्ट सी अन्नपूर्णा, जो कि संजय धारीवाल एंड कंपनी के एक सीनियर एसोसिएट हैं, उनका एक सेमिनार रखा गया था। और हमारे बिल्डर्स को हम ये चाहते हैं कि लॉ इम्प्लीमेंट होने से पहले तमाम मालूमात हासिल करें। मैडम अन्नपूर्णा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त स्पेयर करके हम लोगों के सामने ये सेमिनार पेश किया। राइट नाउ आई एम विद द प्रेसिडेंट फॉर क्रेडाई गुलबर्गा, संजू राठी इज़ द यंग एंड वेरी डायनेमिक। संजू जी, आपने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया बिल्डर्स को एजुकेट करने के लिए, उनको अवेयरनेस देने के लिए। हाउ डू यू मेक एन इम्पैक्ट? कैसा लगेगा ये? New law is coming up. GST is very new for all of us. We all want to know the impacts. For real estate, GST, RERA, there are many things. So we builders should be up to date. And so I felt Anu, she's from our city. She is a leading consultant in GST and we luckily got her up. And she has helped us a lot and our vision is quite clear now. Hope so we are ready for GST and all my builder fraternity. We are coming up with GST and my customers and everyone will know about it. Thank you very much. So do you think GST is a bane or boon for people? It's like you cannot say it's a very boom. The number of taxes have come down, number of forms, number of things. Now it comes under one head, GST. First we used to pay excise, service tax, we used to pay entry tax, we used to pay VAT, we used to pay other taxes, local taxes. Now this is under only one GST. Hello everybody, this is Tara Abbas and you're watching me on GoHack, and we are very fortunate enough to have the honorable speaker Annapurna Kobra ma'am, who is also chartered accountant. Ma'am, आपने यहाँ पे इतनी अच्छी सेमिनार दी, काफ़ी सारे बड़े बिल्डर्स जो गुलबर्गा के थे, they all have assembled here. What do you think लोगों में मैसेज क्या आ जाएगा कि people will understand GST, how will they are reacting to it? So basically I believe that there will be a change in the system, what they are following in the old law and what will be the change in the system in the new law, and there will be a impact in their business also, in their business working capital also, and possibly third thing is the rate of taxes are differing in the existing law and the new law. Okay. So possibly the prices will reduce in the GST law as compared to the existing law. This is my belief based on the informations as stated today. Any word for Credai Gulbarga, Sanjay Rathi and Mohammad Rafid Sahab about this? Credai Gulbarga, I can just suggest that you can make intimations to the government for any changes if you are having any issues when you are executing this GST law, or when you are going to have any issues for the implementation of the GST law, and especially for the transitional credit, you have to rework on that and you can make an appeal to the government for any changes in the provision if required. Okay, final word, GST is a bane or boon for the people? I think it is a mixture of both. Only thing is it depends on business to business, and it depends on the structure and business model which you are adopting in the GST law. Okay, that was really wonderful words from Annapurna ma'am. Thank you so much for giving a wonderful time. Thank you so much. So this is Tara Abbas at Grand Hotel on the eve of understanding GST from Credai Gulbarga. Thank you so much. ना goods है ना service है, क्या है वो? Land और sale of building. क्या है वो? एक तो land और एक sale of completed building. यानी अगर आप सेल करते हो कंप्लीटेड बिल्डिंग, इट इज नॉट, वो गुड्स भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? जब गुड्स और सर्विस ही नहीं है तो टैक्स भी नहीं है। तो प्लीज आप याद रखिए, ये 4 टाइप के क्लासिफिकेशन है आज, यस और नो। तो आज जब जीएसटी में आप जाओगे तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? ये जो फ्लैट्स है, कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स हो रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? क्या इम्पैक्ट होने वाला है? इसमें पार्टली बुक्ड है और पार्टली अनबुक्ड है।
जो आगे का सेल रहेगा और जीएसटी में रहेगा, पीछे का ट्रांजेक्शन का क्रेडिट है। इसका एक क्वेश्चन विल सॉल्व इट। ये चारों क्वेश्चंस आपको ओपन रखती हूँ और अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में इसके सारे आंसर मिलेंगे। मैंने सिर्फ एग्जीबिशन सर्विस प्रोवाइडर एज ए ट्रेडर, ठीक है, सेंट्रल एक्सचेंज ड्यूटी क्रेडिट ले सकते हैं, एज ए मैन्युफैक्चरर ले सकते हैं, एज ए सर्विस प्रोवाइडर ले सकते हैं, ठीक है। सर्विस टैक्स, yes, service tax can take central excise duty, central excise duty can take on service tax. Swachh Bharat says no, it's not semi-double, ठीक है। कृषि कल्याण says yes, only for service provider, not for manufacturers. मुंबई रिसिपिएंट है, मैंने मुंबई का होटल बुक किया है, मेरा कस्टमर यहीं पे है, उसको होटल चाहिए था, मैंने मुंबई का होटल बुक करके दिया है, तो प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है? प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है? मुंबई। तो मुझे कौन सा टैक्स लगाना है इसको? दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए आपको जहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेटेड रहेगी उस बेसिस पे आपको टैक्सेस लगेंगे। इवन कब करूँगी? आफ्टर जीएसटी। इसमें मेरा जीएसटी इम्पैक्ट क्या आने वाला है? आज मैं हैंड ओवर करती हूँ प्रॉपर्टी, तो जीएसटी में क्या इम्पैक्ट आएगा, और ये मैंने इन अंडर कंस्ट्रक्शन है तो जीएसटी में क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। ये चारों आप याद रखिए, चारों जो मॉडल्स है। लेट अस अज्यूम कि ये कंप्लीटेड है, दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, दिस इज योर फाउंडेशन वर्क एंड दिस इज योर हैंडिंग ओवर योर कंप्लीटेड प्रॉपर्टी। तो आपको ये चारों अगर इश्यूज के अगर आपने मुझे एंड में आंसर मिल गया, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड जीएसटी टू सम एक्सटेंट टुडे, ठीक है। प्लीज रियली यू हैव टू वर्क ऑन दैट, बिकॉज व्हाटएवर द you have done till now, it is fine, but for the GST you have to structure, because RERA is also in process. I think you all know this, the RERA which you are hearing every day, and it is, I don't know, still Karnataka government has not given a positive sign for that, but we don't know, we have to be in process. So possibly if RERA and GST are coming together, your process should be streamlined. If you are not streamlined your process, you will end up paying a huge cost for not complying with RERA also and not complying with the GST. Well, I am caught up with Mr. Akash, who is also a chartered accountant. Akash जी, क्या बताइए कि ये सेमिनार से कुछ यूज़फुल चीज़ें मालूम हुई आपको? हाउ यू फेल्ट? काफ़ी सारे यूज़फुल चीज़ें थी, और अपने को काफ़ी सारे कुछ जो अपना थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट थोड़े बहुत जो कन्फ्यूजिंग थे उसमें थोड़ा बहुत काफ़ी अच्छी खासी क्लियरिटी आ गई है। तो भी अभी जब तक अपना जीएसटी एक्ट पास नहीं होता तब तक और क्लैरिफिकेशन आने बाकी है उनके तरफ से। सो व्हाट डू यू थिंक, जीएसटी फ़ायदा है लोगों के लिए या नुकसान है? वन वर्ड। डेफिनेटली इट वुड बी एन बेनिफिट, बट इन ए लॉन्ग टर्म, बट नॉट इन ए शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर अपन देखेंगे तो इट वुड नॉट बी एन बेनिफिशियल एक्ट। मिस्टर आकाश इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो बता रहे थे कि लॉन्ग टर्म पर जीएसटी का फ़ायदा है, शॉर्ट टर्म पर नहीं है। थैंक यू सो मच।